Hi guys, welcome back to Humanities and Beyond. I hope your boards are going amazing and I'm so sure that you're gonna ace them. But while you're preparing for your board examination, I think it's very important that you realize that as soon as your boards end, your CUET examination will be there in no time, and now is the time कि अब हम तैयारी start करें. And I have made it a mission that, like with all of you guys, हम साथ में will prepare for CUET 2025. Now I'm starting a new series called Ace UET, wherein I'll cover everything that's there to know about the examination. All important updates, basic things such as filling the CUET registration form, to the strategies that you need to use in the paper, the study material, the mock test that you should appear for, everything that I did in my year, and I ended up scoring a 99.5 plus percentile with a 100 percentile in my English examination. So everything that I know will be something that I'll be sharing with you guys with this channel, with the video, with my videos in the Ace UET series. All you need to do is subscribe to the channel, hit the notification button and like the current video so that I know my content is helping you. I know that there are people who are listening to what I'm saying and I can help bring about some impact to anybody. Now, today in this video, we'll be covering the CUET registration process in like very detail. I have personally filled out this form like with my own details so that I know exactly what changes have been made and what exactly you need to do. So just watch till the end and we'll be covering everything. Also, I'll be using a mix of Hindi and English in this video so that everyone is able to understand. Please let me know if there is any language requirement like you guys want me to change. I'll just take that into notice. Everything in the comment section is something that I'll personally read to, reply to, and any doubts whatsoever you have, please feel free to comment that. Okay, let's begin. Here we are, and now we'll be beginning with the entire process of how exactly your CUET form will work. Very importantly, your registration is ending on 22nd of March, so everything that you need to do has to be done before that. Don't leave it for the last minute because बहुत ही रियलिटी से बता रही हूँ कि द पोर्टल स्टॉप्स वर्किंग इन द एंड मोमेंट्स एंड बहुत ज़्यादा सर्वर क्रैशेस होंगे एंड इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू फिल इट एट द वेरी लास्ट मोमेंट एंड this mistake here is going to hurt a lot later. So without any delay, let's begin. Before we move on to exactly the CUET registration form, if there is someone who is here not even knowing what CUET is, a very quick overview. CUET is the common undergraduate entrance test. Now this is your gateway to 244 universities, central, state, private universities, some really good universities such as Delhi University, JNU, AMU, BHU, Tata Institute of Social Sciences, all of these under one examination that you have to appear for 3 sections: your language, your domain test, your general test. Overall, you can appear for 5 papers and the mix that you need to decide is up to you. You can not appear for a general test, it's okay. You can appear for 2 languages, that's your own choice. But the total number of papers remains to be 5. This is a change that has come in CUET 2025 and you need to keep a note of that. Now again, as I mentioned, very important and very key that your last date is March 22. Do not miss it at any given point. So let's just move on. Now, how to fill the examination form, a step-by-step guide. So the first thing that you need to do is, the first portal that you'll come across is on this website, that is cuet.nta.nic.in. Every link jo I am using in my video will be in the comment section. So even if you're confused as to what is the original site, whatever, just go to the video description section, find the link, go directly. Everything is something personally मैंने फॉर्म भरा है A to Z end तक and I'm telling you it will work, everything will be smooth. So you have 3 sections as soon as you enter. One is the information bulletin. This is a 90-page document. I have gone through every line on this document. I've highlighted. I'll be sharing that also in the description section and I'll be making a separate video as to exactly क्या नई चीज़ें हैं, क्या important है, so that you guys know what's there from the official information that the conducting body has shared. Anything on the internet is vague. Anything that's official is the only thing that you have to trust. So with the registration process, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको new registration करना है. So if you're someone who's coming to the site for the first time, you have to register yourself. Go here, new registration पे आपको जाना होगा and once you click here,
you come, you're able to create your own your application. You have to give very basic details and then you'll get a email जो आपकी registered email ID होगी. प्लीज़ 2 बार चेक करके डालिएगा अपनी registration email ID, कोई नंबर गलत नहीं, कोई नाम का एक लेटर गलत नहीं, because every information that you need will be sent on your registered email ID. On a registered email ID, on the next section that we have, that is, now once you're done here, once you've registered, you can go to the login portal. एक बार रजिस्टर कर लिया, आपकी ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका पासवर्ड आपने सेट किया होगा. अब आप जाएंगे लॉगिन पोर्टल पे, अगेन सेम उस पर CUET.NTA.nic.in. अब हम इधर आ गए हैं. ये लॉगिन पोर्टल पे जब आप जाते हैं आपको पूछेंगे एप्लीकेशन नंबर, ये आपको मिल जाएगा आपके ईमेल पे. फिर आपका पासवर्ड आपने खुद सेट किया होगा एंड कैप्चा आपको यहीं से देख के बस यहाँ पे डालना है. एक बार ये हो गया, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग वुड लुक लाइक दिस. दिस इज़ योर एप्लीकेशन स्टेटस का पोर्शन. हियर अभी हमने क्या किया, अभी हमने बस रजिस्टर किया है. सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड. क्या क्या इनकम्प्लीट है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट. अब इधर लाइक वंस यू डन दिस, नाउ लेट्स मूव ऑन. यू नो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. दिस इज एवरीथिंग दैट यू विल हैव टू डू इन द पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस. ये 10 चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है. ये साइड में होता है, आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे आपको पता है कि आपको कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं. सो पहला है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेरी बेसिक, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, नाम, नंबर, ये चल, बट यू कांट मेस देम अप. आपको सही चीज़ें डालनी है, आपको 2 बार चेक करना है, बिकॉज दीज आर योर परमानेंट रिकॉर्ड्स. दे हैव टू मैच योर गवर्नमेंट ID पे जो भी दिया हुआ है. इफ़ यू दे डू नॉट मैच, योर एप्लीकेशन माइट बी रिजेक्टेड लेटर ऑन एंड दैट इज गोइंग टू हर्ट अ लॉट. So rather than being sorry later, it's very very important that हम अभी ध्यान से करके चलें ये सब. फिर the second thing is personal details, then identity details. यहाँ पे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, जो भी आपके गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, आप उधर यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं. पासपोर्ट भी यूज़ हो सकता है एंड आपको उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स डालनी होंगी. सो वही डालिएगा जो आपके पास है, क्योंकि ये एग्ज़ाम डेट पे भी लेके जाना होता है. सो ये नहीं कि आपने बस फोटो डाल के डाल दिया, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए. आइडियल है, आधार सब पे होता है, आप आधार डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. देन आपार ID. नाउ this is something that's that is like the government has started so that there are centralized records. Now it's a yes or no thing. So if you don't have it, it's okay, you can move on. ये नहीं है कि आप 1 घंटा दिमाग ख़राब करें कि मेरे पास आपार ID नहीं है, हम कहाँ से लेकर आएँ. It's okay, you can just skip it. I personally feel no for it and कोई फॉर्म में दिक्कत नहीं आई है. Then apply for exam and select test paper. The most important है, अभी इसमें डिटेल में करते हैं. रजिस्टर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल. एक बार मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड है. एक बार अगर आपको पहले ही जानना है क्या क्या है, यहाँ पे आपको पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर, साइज मेंशन्ड है, और सिग्नेचर. सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको. बाकी जो लग रहा हो कुछ भी अभी नहीं होगा, बाद में अपलोड होगा आपकी मार्कशीट वगैरह. अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सिर्फ 2 चीज़ें, पासपोर्ट साइज पिक्चर और साइन. नाउ इस पासपोर्ट साइज पिक्चर में याद रखिएगा, जो आप यहाँ पे लगाएंगे वो आपको एग्जाम डेट पे भी लेके जानी होगी. ये उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में गिवन है, द 90 पेज जो बुलेटिन आई है, कि जो आपने यहाँ पे अभी लगाई है वही आपको उसकी हार्ड कॉपी लेके जानी है. जो अटेंडेंस शीट में जब आप पेपर लिख रहे होते हैं एग्जाम के बीच में, आपको उसको स्टिक करना होता है. सो ये बिल्कुल भी ये नहीं कि आपने कोई भी फोटो डाल दी कोई बचपन की, क्योंकि वो रिसेंट भी होनी चाहिए, आपकी शक्ल से मैच करनी चाहिए. तो आप नई पिक्चर नहीं है, खिंचा लीजिए जाके, एक पिक्चर में कुछ नहीं जा रहा, एंड उसी की हार्ड कॉपीज़ अपने साथ रखिए जिससे कि वो आप अपने साथ लेके जा पाए अपने एग्जाम डे पे. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू डिटेल, वो एक एक करके. कुछ भी डाउट हो इन द एंटायर प्रोसेस, एनीथिंग दैट आई माइट हैव स्किप्ड, just write down below in the comment section. I'll reply, and I'll reply within like the day itself, and I'm making sure that any doubts that happen, anything that you guys face issues with, I am there for you. I am able to sort them, and like if there is anything, I'll reach out to the officials, I'll reach out to them on email, I'll do that for you. So आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मुझे बताना है आपको प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन मैं ला के दूँगी. Now we are here on the personal details. यहाँ पे your name, your DOB, your nationality, everything. Now do not fill incorrect information. अगर आपके सरनेम में एक भी लेटर ऊपर नीचे है, वो आपकी गवर्नमेंट ID से मैच नहीं करेगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है. प्लीज़ रिमेंबर दैट. देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव इज
योर पर्सनल डिटेल्स, वही फॉर्म हमारा चल रहा है, इसमें आपको कैटेगरी डालनी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे कैटेगरी गलत ना डाल दें. अगर आपने अपना कैटेगरी में कोई रिजर्व क्लास का कैटेगरी दिखाई है या फिर आपने PWD में कुछ भरा है, तो आपको इनके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए जो वैलिड हैं, जो एडमिसिबल हैं, जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है. बिकॉज अगर आपके इनवैलिड होंगे या कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे होंगे, किसी उस पर नहीं चलेगा. ओनली वैलिड डॉक्यूमेंट्स आर अलाउड एंड देन यू शुड फिल दिस एंड यू शुड हैव दोज डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी विद यू. नाउ दीज आर अदर डिटेल्स, डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिडेंस. डायबिटिक बिकॉज एग्जाम में आपको बॉटल वाटर कुछ ले जाना अलाउड नहीं है, बट इफ़ यू आर डायबिटिक यू आर अलाउड टू कैरी योर ओन स्नैक्स. दिस इज गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप में से किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे प्लीज़ येस करिए, जिससे कि आपके फॉर्म में ही उनको ऑलरेडी पता है, सो दैट लास्ट मिनट आपकी लड़ाई नहीं होगी. आपको पहले से आपने इन्फॉर्म कर रखा है, आप लेके जा सकते हैं. NTA को भी फ़र्क पड़ता है कि जो उनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में. सो दे केयर फॉर यू. यू हैव टू मेक श्योर that you are able to avail all those services. Now these are all the personal details. Please fill them very carefully. इसके बाद ये आता है आइडेंटिटी डिटेल्स. यहाँ पे मैंने भर दिया, जैसे मैंने आपको बोला मैं फॉर्म भर ही रही थी आपके साथ मैं इससे पहले. सो मैंने आधार से रजिस्टर किया, कुछ नहीं, मेरा आधार नंबर मांगा एंड उसके बाद उसको खुद ही से उन्होंने वेरीफाई कर लिया एंड मतलब उसको अपलोड करना होता है एंड ये वेरीफाई हो जाएगा. ये आपको आपकी जो आपके पास हाथ में है आईडी उसी के साथ करिएगा, जिससे कि आप इसको एग्ज़ाम डेट पे भी लेके जा सकें. एंड इधर आपको कुछ भी मतलब यू हैव कांट मेस दिस अप बिकॉज एवरीथिंग जो आपके डॉक्यूमेंट्स में गिवन है वो इसी से वेरीफाई होगा. सो आपको ये वेरीफाई कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ये हो गया, दिस इज अ शॉर्ट प्रोसेस, यू कम टू द APAR ID थिंग. नाउ दिस इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट हिस्ट्री. अगर आपको ये करना है, अगर आपको इसमें येस करना है, सो यू कैन गो ऑन द वेब एंड गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस एंड दे आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे आ जाएगा आपके, एंड वहाँ से आप देख के आईडी नंबर और सब कुछ डाल सकते हैं. बट अगर आपको अभी खाली अपना फॉर्म भरना है और जल्दी से जल्दी भरना है 22 मार्च से पहले, आप यहाँ पे नो कर सकते हैं और आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे. इट्स ओके. मैंने नो करा है एंड आई विल शो यू द नेक्स्ट स्लाइड. परफेक्ट. आई जस्ट मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now this is the quintessential, the most important, the most crucial section of your paper. Do not mess this up. I'll repeat this in Hindi as well. इसको आप गलत नहीं कर सकते हैं. ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर पूरे फॉर्म का सेक्शन है. यहाँ पे कुछ गलत किया आपके एग्जाम में जाए, आपके एग्जाम में दिक्कत आएगी. Now a very important detail here as well is पहली बार in CUET 2025 you can fill the domain paper that you have not studied in your class 12th examination. I'll repeat. जो आपने सब्जेक्ट्स अपने 12th में नहीं भी पढ़े हैं, आप उनको भी डोमेन में चूज़ कर सकते हैं. एंड दिस समथिंग जो CUET 2025 में पहली बार आया है, ये ऑफिशियल बुलेटिन में मेंशन है. थोड़ी सी स्पेकुलेशंस हैं अभी कि हो सकता है DU रिजेक्ट कर दे या कुछ, बट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यही है. देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट इट. आई मेक अ सेपरेट वीडियो आई टू लाइक वंस आई हैव वेरीफाइड एवरी क्लेम. सो आप ट्राई करिए, जो आपने जो पढ़े हैं वही भरिए. बट DU अलाउ कर रहा है आपको, सॉरी आई विल करेक्ट माई सेल्फ, NTA अलाउ कर रहा है आपको कि आपने जो सब्जेक्ट नहीं भी पढ़े हैं 12th में, आप उनके पेपर लिख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट कुछ अलग है. दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ NEP कि इवन इफ यू स्टडीड सम अदर ब्रांच बट यू वांट टू डाइवर्सिफाई, यू कैन. एंड CUET इज़ something that is furthering the spirit of NEP and the new education policy, and I think it's a very good step so that a science kid can go ahead and get a commerce college में admission and doesn't have to write the lengthy physics paper जो ख़त्म नहीं होता कभी. But that's a separate decision. But keep this in mind. Decide if you want to change. But follow my channel. Subscribe to it right now, because I will be posting a video very soon, like in the next 2-3 days itself, about giving you a perfect confirmation on the fact that if it's admissible in every university या कोई दिक्कत आ सकती है, so that you guys know कोई issue है या नहीं. अभी के लिए let's just move on to the form filling. Now here the sections that you'll get is आपको एग्ज़ाम आपका CUET UG डिसाइडेड है. यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं डोमेन पेपर, योर लैंग्वेज एंड योर जनरल टेस्ट. नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल. आप टोटल 5 पेपर्स भर सकते हैं, कुछ भी भरिए. अगर आपको 2 लैंग्वेज देनी है, आपको आपको जनरल टेस्ट नहीं देना है, आपको डोमेन ज़्यादा देने दे दो, बट आप टोटल 5 ही भर सकते हो.
सो आइडियल जो एक आइडियल मैक्सिमम अच्छी यूनिवर्सिटीज़, ऑल योर दिल्ली DU का नॉर्थ कैंपस, लाइक स्टार्ट विद SRCC, हंसराज, हिंदू, LSR, जिनके मेजर अच्छे कोर्सेज के जो कॉम्बिनेशन है, दे आर you give one language, you give 3 domain paper and you give the general test. General test हर जगह एडमिसिबल नहीं है. लाइक माई ओन पर्सनल कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, इट्स एन अमेजिंग अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, एंड दैट स्पेसिफिकली रिक्वायर्स यू कि आप जनरल टेस्ट दीजिए एंड आप उसके बाद ही आप अपीयर कर सकते हैं इसके लिए. बट अगर आपको जनरल टेस्ट नहीं देना है, इट्स ऑप्शनल. आप 2 लैंग्वेज दे सकते हैं, आप 3 डोमेन दे सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू. बट नो योर कोर्सेज, नो देयर रिक्वायरमेंट्स. इसकी भी कोर्स एक लिस्ट है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. वहाँ पे सारे कोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स गिवन है. CTRL F दबाइएगा वंस यू ओपन दैट थिंग ऑन योर लैपटॉप, एंड जो आपको कोर्स चाहिए उसको सर्च करिए, जो आपके स्पेसिफिक कोर्स हैं, जो आपके डिग्री से मैच, आपके ब्रांच से मैच करता है, और उसकी स्पेसिफिकेशंस देख के ही ये फॉर्म भरिए. Again, subscribe to the channel because I'm going to be posting subject combinations, perfect combinations for all big colleges and big courses. If there is any specific course जो आप चाहते हैं मैं पहले बनाऊँ या उसको मेंशन करूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि जिनकी आपको सब्जेक्ट लिस्ट चाहिए, जिनकी आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, आपका कोई पर्सनल केस है और आपको डिस्कस करना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. आई विल रिप्लाई टू यू. You can also reach out to me on my email ID. It's given in the channel description, or you can comment below. I'll be there, I'll be replying, and I'll be giving you jitna guidance I can give you from my end, like to my best ability. So now the second part of this, and also this is something equally important, your paper. आप सेंटर कहाँ भर रहे हैं. प्लीज़ मजाक के लिए दूर के सेंटर मत भर दीजिएगा कि 4th चॉइस भर देता हूँ बहुत दूर का, अंडमान एंड निकोबार भर दिया है, बिकॉज आपको वो मिल सकता है. बहुत सारे लोग CUET देते हैं, बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट्स देते हैं. इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको आपकी फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस मिलेगी ही. अपने शहर के आस, अगर आप जैसे दिल्ली के हैं तो दिल्ली भरिए, गुड़गांव भरिए, गाज़ियाबाद भर दीजिए, जो भी NCR, नोएडा, NCR रीजन भर दिया, बिकॉज आपको वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा. अगर आप लेट हुए तो NTA रिस्पॉन्सिबल नहीं है. एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन मेंशन इन द CUET बुलेटिन itself is the exam dates and the exam center that you get is final. You can't appeal, you can't email them. ये कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि अच्छा गलत भी आ गया तो मैं बोल दूंगा कि मेरा क्लैश कर रहा है, मैं आ नहीं सकता, मेरी टिकट नहीं हो रही है, आप कुछ भी प्रूफ भेजेंगे उन्हें, वो आपका रीस्केड्यूल नहीं करेंगे. आपको उसी दिन देना पड़ेगा, आपको उसी जगह जाके देना पड़ेगा. एंड ये कुछ भी सब्जेक्ट टू चेंज है ही नहीं. देयर इज़ नो मैकेनिज्म फॉर यू टू गो रीच आउट एंड चेंज. इट इज़ फुल एंड फाइनल. प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ थिंक बिफोर यू आर फिलिंग दिस फॉर्म. आपको पता होना चाहिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप वहाँ पहुँच सकते हैं. नाउ वंस यू डन दैट, द नेक्स्ट थिंग इज़ योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स. यहाँ पे आपको 10th 12th का आपको अपनी 10th की सारी डिटेल्स डालनी होगी. 12th अगर आपने दे दिया है तो डालनी होगी. फॉर पीपल हु आर स्टिल अपीयरिंग फॉर द 12th, you won't have to mention that. Once you're done with that, you don't have to also necessarily upload your आंसर की मार्कशीट यहाँ पे नहीं डालनी होती है. अभी आप वो बाद में प्रोसेस में आएगा. अभी वाले विंडो में आपको आंसर की भी नहीं डालनी है. नाउ दिस इज़ योर फाइनल थिंग जो आपको करना होगा. इसके बीच में 1 सेकेंड, यस, देयर इज़ ऑल्सो एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए ये स्लाइड में नहीं डाला गया है, बट ये है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए. इधर यू हैव टू मेंशन बस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नाम एंड द नंबर. ये आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं, अपने सिबलिंग्स का, जो भी आपको लगता है आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हैं सही, आप उनका डाल सकते हैं. फाइनल अपलोड डॉक्यूमेंट्स. 2 documents have to be uploaded. Let me zoom in so that you guys know. First thing is your passport size photo, and second thing is your signature. Again, I am repeating it, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वही डालिएगा जो आपके पास हार्ड कॉपी है, बिकॉज आपको एग्जाम डे पे लेके जानी होगी, ये आपके फॉर्म पे लगेगी, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आपके पास वो हो. तो अगर आपके पास नहीं है, बेस्ट है, लाइक आई सजेस्ट कि जाके एक जगह पे खिंचवाए आइए एंड यू कीप इट विद यू. सेकेंड थिंग इज सिग्नेचर. देयर आर स्पेसिफिक थिंग्स, वो स्पेसिफिकेशंस दैट आर गिवन. नाउ a lot of people face problems uploading because वो रिजेक्ट हो जाती है. अगर आपको साइज़ की दिक्कत है, there are size converters that are there online for free जो आपको कर देते हैं. I will attach some of them in the description box. एनीथिंग जो मुझे फॉर्म भरते हुए लगा कि ये लिंक इंपॉर्टेंट है, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. एंड दिस इज समथिंग आई डू फॉर एवरी वीडियो दैट आई मेक. So ACUET is a mission that I have set on, and I want to help as many kids, as many people as I can in that mission. So
प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ कॉमेंट अगर आपको कुछ भी चाहिए, बिकॉज I need to see that I'm able to bring about some impact. I am in my third year right now. I'm done with college, and I this is my way of helping people, because I appeared for CUET in the 2022 batch. So that was the first time ये हो रहा था, and I had no help. So we were just shooting arrows in the dark. Now that there has been precedent, there have been some exams that have been conducted since 2022. I want to share my experiences, help you guys the most, share my resources. So that's it. That's about this video. इसके बाद you'll have to submit the fees, and your registration process is complete. There's a final submit option wherein you can review your entire application. Now once you're done with that, I am suggesting very very strongly that don't wait till the last date, don't wait till 22 March. Fill it as soon as you can. You see the video, you just fill it right after that. You open the video, side may open the form, fill the next thing, watch the next segment of the video, and just finish it. Get it over with. It is one headache off you. All the best for your board examinations, and all the best for your CUET preparation as well. I know अभी लग रहा होगा it's a lot as of now, but your all your hard work will pay off. जो मेहनत अभी आप करेंगे वो आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे तो वो आपको वर्थ इट लगेगी. And with that, all the best.